Hello students, hope you all are doing good. Welcome back to the e-learning classes of Sunrise Global School. This is Asmita Sharma, your science teacher, and today we are going to continue with the fifth chapter of science, that is fundamental unit of life. So this is the chapter all about the cells. So we have already learned that cell was first discovered by Robert Hooke, as you can see it into the picture, that in 1665 Robert Hooke was the first person who discovered the cell. So we are just going to do a quick revision about what we have learnt in the last class. So I'll show you some important pictures that you have to remember. So this is the Robert Hooke's microscope, into which he observed the cell and through which he had came up with an idea to discover what the cell is, and he did all the experiment through with the help of this compound microscope. So this was the microscope of Robert Hooke. Now this is the cork that we discussed in the last class, the cork that comes from the bark of a tree. So this is the cork we obtain जो हमें tree में से मिलता है. And on the right hand side you can see the picture of a honeycomb. So this was the honeycomb जिसको देखकर रॉबर्ट हुक ने एक रिसेम्बलेंस क्रिएट किया कि सेल्स जो होते हैं वो भी इसी शेप में होते हैं, and they are also just like the honeycomb, the particles, or you can say the shape of the honeycomb. So Robert called these little compartment as cells. So all the compartments that he has seen, he called it as cell. Cell is a Latin word. Important point that has to be noted. Cell जो है वो एक Latin word है जिसका मतलब होता है a little room. So this is an important point of view with the point of view of MCQ. So you just have to remember this कि सेल जो था, उन रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने हनी कोम के जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे उनको नाम दे दिया सेल. एंड सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा. सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, दिस इज़ नॉट द टॉपिक दैट यू हैव टू बी वेरी मच प्रिसाइज अबाउट, बट फॉर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू see that, or you just have to you should know that what a compound microscope is. So this is how the compound microscope looks. It has the eyepiece, a coarse adjustment through which we can adjust. This is the fine adjustment. Then there is an ARM, stage clips, diaphragm, base, and here it is the mirror, the stage, low power objective lens, and then high power objective lens. So these all things are the common things that you can see into a compound microscope. So now moving to the today's topic, that is the onion peel. So here the Robert Hooke also observed the onion peel, and onion peel is the पील, और यू कैन से जो ऑनियन का जो एक लेयर होता है जिसको हम लोग ऑनियन पील कहते हैं. सो फर्स्ट थिंग अबाउट दिस इज दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर. तो जब ऑनियन पील को एक्सपेरिमेंट के थ्रू, रिसर्च के थ्रू जब देखा गया, तो ही फाउंड दैट कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है. दैट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑन द ऑनियन पील्स लुक वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर. मतलब कोई सब्सटेंस एक दूसरे से अलग नहीं है, सब सिमिलर लगते हैं. So together they form a big structure like an onion bulb. और जब इन छोटे छोटे सारे स्ट्रक्चर्स को हम एक मिक्स कर दें, साथ में मिला दें, तो बन जाएगा एक ऑनियन बल्ब. दैट मीन्स द होल ऑनियन, उसको नाम दे दिया ऑनियन बल्ब. करेक्ट. द सेल्स ऑफ एन ऑनियन पील विल ऑल लुक सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑनियन. सो ऑनियन के साइज से उसके सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. सेल जो होते हैं ऑनियन पील में, जो भी ऑनियन में सेल होता है वो एक दूसरे से बहुत सेम है और बहुत सिमिलर दिखता है, पर उससे और उसके ऑनियन की साइज़ से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. अगर ऑनियन छोटा होगा तो भी उसके सेल एक जैसे ही दिखेंगे, ऑनियन बड़ा होगा तो भी उसके सेल्स जो हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं. तो सारे सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं, एंड इसीलिए वो जब साथ में मिल जाते हैं तो हम इसे ऑनियन बल्ब कहते हैं. These small structures are the basic building unit of a onion bulb. ये जितने भी छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स आप इस पिक्चर में देख रहे हैं,
ये सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको हम लोग बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स कहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ को बनाने के लिए उसका एक बेस बहुत ज़रूरी है, उसका बेस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड वैसे ही इन सारे छोटे छोटे एक एक यूनिट को जब हम साथ में मिलाते हैं तो ये सारे यूनिट साथ में बन के ऑनियन बल्ब बनता है। तो एक यूनिट का होना इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक बेसिक यूनिट है पूरे ऑनियन को क्रिएट करने के लिए। एंड दैट इज़ वाई इस पूरे यूनिट के को हम लोग एक सेल के नाम से जानते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ सेल. So I hope the topic for onion peel is clear. Moving ahead, about the unicellular organisms. So generally the organisms on the earth that are living organisms are generally classified into two types. दो टाइप्स में सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया गया है. पहला टाइप है यूनिसेलुलर एंड दूसरा टाइप है मल्टी सेलुलर. सो यूनिसेलुलर दैट मीन्स कि जिसमें सिर्फ एक ही सेल है. यूनी, सो द वर्ड यूनी सेज वन. सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स अगर वो यूनिसेलुलर हैं दैट मीन्स उनके पास सिर्फ एक सिंगल सेल होता है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के आपको दिख जाएंगे, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमेंडोमस. ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास हमेशा सिर्फ एक ही सेल होता है, पूरी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है. नेक्स्ट ओवर हियर इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी दैट मीन्स मोर देन वन, जिसका मतलब होता है मोर देन वन. सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनमें मोर देन वन या एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. सो इनके बॉडी जो है, इनका सेल जो है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि प्लांट्स, फंगाई, एनिमल्स. एंड इसमें हम अपने आप को दैट मीन्स हम ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं. सो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम भी खुद बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं. अब सेल्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके बॉडी में एक सेल नहीं होता, बहुत सारे सेल होते हैं, और ये सेल भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं. क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो सिर्फ एक ही सेल होता है, एंड दैट डजंट मीन कि उसको कोई टाइप की ज़रूरत है, उसको कोई टाइप ज़रूरत नहीं रहती. बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स बहुत सारे डिफरेंट बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं. सो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट सेल्स के बारे में पढ़ लेंगे. सो सबसे पहला जो डिफरेंट सेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा वो है नर्व सेल. सो दिस इज द नर्व सेल. अब जो नर्व सेल है दैट इज जनरली अक्वायर्ड इनटू द नर्वस सिस्टम. ये ज़्यादातर नर्वस सिस्टम बनाता है. नर्व सेल जो होता है वो बॉडी के बहुत सारे मैसेजेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कंडक्ट करने का काम करता है. दैट मीन्स मैसेज को पास करने का काम नर्व सेल करता है. सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर यू हैव टू रिमेंबर इज कि नर्व सेल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन to the different organs of the body and from different organs to the brain. So that is how the nerve cell works. Will not go into the detail because it is just that you should know that what are different type of cells, so will not go into the detail about it. The next is about the fat cell. So all the fat that the body has, all the fat is converted into the cell, and this is how the fat cell look. Now over here is the bone cell, which is generally found into your bones. The next is the sperm that is generally found into the male persons. Next is about the blood cell. So blood cell is very much common and is present in all the living organisms. Next is the ovum, and ovum is present in the female organisms, or we can say the female living organisms. So we have learnt about almost
6 type of different cell. The first one is the nerve cell, the second is the fat cell, third one is the bone cell, which is found into the bone. Next is the sperm, which is generally found into the male organisms. Next is the blood cell, which is into the blood of our organisms. And the last is the ovum, that is generally found into the female organisms. So this is how all the different type of cells are acquired into our body, and with the help of all these cells our body works. I hope this much is clear to you. For the next class we'll study in the for the next topic we will be studying in the next class. Till then, take care, stay safe, stay home and keep studying.